और सबसे पहला प्रश्न ज्योति जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, चक्रा क्या है और चक्रा कितने प्रकार के होते हैं? जैसे कि हमने कभी कभी पढ़ा भी है षड चक्र, 6 प्रकार के चक्र होते हैं, कहीं कहीं पढ़ा है कि सप्त चक्र होते हैं। वेदों में कहा गया है कि अष्ट चक्र नवद्वार देवानाम पूर्योध्या। तो चक्रा कितने प्रकार के होते हैं और चक्रा जब इनबैलेंस होता है तो डेली लाइफ में उसका क्या प्रभाव पड़ता है? Very nice question. So first I'll start with है क्या chakras, जी, right? So करेक्ट। chakras are these energy vortex, vital energy जिसको हम प्राण शक्ति बोलते हैं. And जी, is your network okay, Aman? हाँ हाँ हाँ, Okay. यस। All right. So chakras are vital energies जिसको हम प्राण शक्ति भी बोलते हैं. And there are 114 chakras in total flowing through. It is getting connected through 72,000 nadis, the nervous system ओ, basically. जी, Yeah. So it is very fascinating topic actually. A lot of people don't know about it. जी, So even when I was getting to know about chakras, I was very much fascinated because it is it is so real. The energies flowing through our nervous system, our astral body, our physical body. It's a blend of energy basically. And this is the gross body, and another part that is astral body is a very subtle energy, but it is there, but we just cannot see it because it is that subtle. So to tap onto these things, no, our energies has to be very, very active. तो जब इम्बैलेंस हो जाता है ना इन चक्रास में, जी, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती है. फिजिकल प्रॉब्लम्स लाइक हेडेक और सम डिसीज, बट उससे भी पहले इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द माइंड, द मेंटल बॉडी, द इमोशनल बॉडी. सो हमें बहुत ही ध्यान रखना होता है हमारा. Sadly, people don't do that, and that's where we come into the picture, like me and Aman. So yeah, this is one part of the answer. And am I missing anything? The other question was? अदर क्वेश्चन ये था कि चक्रास जब इम्बैलेंस होते हैं तो हम उसको डेली लाइफ में कैसे मेंटेन कर सकते हैं? Sure, yes, I'll let you know that. And before that, I'll just quickly on the surface level talk about chakras, like just two करेक्ट। lines each ओके। chakra. मैं 9 चक्रास में बिलीव करती हूँ. ऐसे ओके। फिजिकल बॉडी में 7 है, बट देर आर अदर 2 चक्रास, अर्थ स्टार एंड सोल स्टार. अर्थ स्टार चक्रा is the chakra which is directly connecting us with our ancestral energy. Then ओ, comes our root chakra, which is located in the tip of the tailbone, and it is responsible for our survival instincts. जी, And a fear generates from here, you know, अगर ये imbalance होते हैं तो. And then comes the sacral chakra जहाँ से creativity flow होती है. And then comes the solar plexus chakra जहाँ पे will power generate होती है. अगर imbalance है वहाँ पे, तो मतलब आप में ईगो ज्यादा आ रहा है, या फिर आपको गुस्सा ज्यादा आ रहा है, मतलब या फिर आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम है, not certain things, because the जी, location of those chakras are during the locations of those chakras are at those points of the body and करेक्ट। connecting through that nervous system. And then comes the Anahata chakra, the heart chakra. It's the bridge between the material world and the spiritual world, you can say. Like, because as we ascend upwards, we become more soft, more feminine, more pure, करेक्ट। more towards traveling towards the godly, the divine energy. And then comes our throat chakra. It is also called as Vishuddhi chakra, and it's the chakra of expression. कि हम कितने uh, कितने मतलब how much we are ourselves while we are talking, while we are expressing, but also how much we are listening, you know. And then comes our my favorite chakra, the third eye chakra. It enables our intuition power to rise like anything. It is so powerful. It is the reason how we think, the third eye chakra. करेक्ट।
It's the mind's eye. And just right where our pituitary gland Correct. is. And then comes the crown chakra, which is sitting right here. People say that it's always opening like lotus with infinite petals on it. So it's a very beautiful energy which, feels over this part of the body. Um the crown chakra is connecting us with the divine energy, and soul star chakra is the link. वहां से वो एक पावर आती है, हम्म, हम्म, passing through the soul star. It is very divinely. I can't even express. If I happen to talk about it, it will be like I'm doing injustice to what I'm explaining about the divine light and energy. So, this is something that, the seven chakra I spoke about. But now, talking about कि जब ये imbalance हो जाते हैं तो क्या करना है, हमें करेक्ट। सबसे पहले समझना है कि imbalance है कहाँ पे, कौन सा वो चक्र है जहां पे हार्मनी में डिस्टरबेंस है, राइट? तो वो चीज आइडेंटिफाई करना है पहले तो, एंड द मोमेंट वी हैव आइडेंटिफाइड इट, हम्म, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट्स रूट कॉज, जी, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट. क्योंकि for example, I had a client and he came up with saying that मुझे ना time management नहीं हो रहा है and I want help with that and everything. So I told him certain things, this you do, but later I discovered that उसको time से problem नहीं है, उसको problem है कि he is finding difficulty in getting accepted. उसको fear of rejection है, and that हम्म, is connected with their solar plexus, their प्लेक्सस। heart chakra, and their root chakra. ओके। And उस वो सब चीजों के लिए हाँ बोलता था, yes to that plan, yes to this plan, हाँ ये वाला project भी yes. He had so much on his plate that he couldn't manage his time. तो उसको लग रहा था कि मुझे time manage नहीं करना आ रहा है. जी। So that's how identify होता है the root हम्म, problem. After that, the moment we are certain that this is the root cause, then we हम्म, treat it with the remedies, and they are very simple. Good food, sattvic bhojan, at least avoid very spicy food or very oily food which is going to hamper your solar plexus, because digestion takes place there. Fire is the element of solar plexus, and you need to be more loving and empathizing towards yourself, so that वो जो खुद से जो हम खुद को इतना कोसते हैं वो सब बंद हो जाए, सेल्फ डाउट खत्म हो जाए, और we are more towards the light. So, ओ, um, another thing that helps in balancing the chakras is meditation. And the best जी, way to do is with mantras and affirmations and mudras and everything. And crystals are a big source of energy giver. So we should, have them every time when we are uh, trying to get the chakras in balance. सो वेरी छोटी छोटी चीजें हैं, जब इन पे ध्यान करते हैं तो वो चीजें अपने आप, जो प्रॉब्लम वाली चीजें वो अपने आप जाननी शुरू हो जाती है, एंड अच्छी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं. सो इट्स लाइक अ रिप्लेसमेंट ऑफ द गुड थिंग्स विद द बैड थिंग, बट इट कम्स विद इट्स डिफरेंट टेक्निक्स एंड मेथड्स जो मैं अपने क्लाइंट्स के साथ प्रैक्टिस करती हूँ और करवाती हूँ. सो this is the whole, a little mota mota how I can like जी। explain कि अगर ये imbalance है तो इसको balance में कैसे ला सकते हैं. हम्म, ओके। And this is something that I wanted to tell. I hope इससे बहुत लोगों के questions and doubts clear हुए होंगे. And हुए ही होंगे। क्या आप मुझे कुछ ऐसी टेक्निक कराना चाहोगे जो जो भी लोग हमें देख रहे हैं वो भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं? एंड जो भी लोग हमें वॉच कर रहे हैं, प्लीज मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमें जरूर बताइएगा, और हम लास्ट में उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी जरूर देंगे। मेंटल हेल्थ हमारा मेन टॉपिक है।
हाँ जी, हाँ जी। आई विल वॉन्ट एवरी वन, नॉट जस्ट अमन, यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं सब जी। एक शांत जगह पे जाके बैठ जाइए with your backbone straight, like keep your back straight, okay? एंड बहुत ही एक अच्छे मन के साथ बैठें, क्योंकि जो हम अभी मेडिटेशन प्रैक्टिस करने वाले हैं, इट इज टू काम योर नर्वस सिस्टम डाउन इमीडिएटली. नाउ close your eyes. Let's set the right intention. This meditation is going to help us relax our nervous system down, and I allow that for my mind, body, and spirit. I deserve to experience the calm and peace. Now take a deep breath in and breathe out. Take a deep breath in and breathe out. Take a deep breath in and breathe out. Come to your consciousness, the present moment. You are here at this hour, at this second, experiencing the present. Now take a deep breath in, let your stomach blow like a balloon, and breathe out. Now with a gentle smile, one more, take a deep breath in, hold your breath this time, and gently release. Let all your worries, all your tensions flow through this breath. Take a deep breath in, hold your breath. 4, 3, 2, 1, and exhale. Let go of all the resistance that is holding you back. Now, with a gentle smile, one last time, take a deep breath in, hold your breath. 4, 3, 2, 1, and release your breath with a smile. Appreciate yourself today. Say thank you to the divine, to your God. Your existence is powerful and you are unstoppable. I want you to feed this in your mind. You are powerful and you are unstoppable. You are powerful and unstoppable. You are powerful and unstoppable. Now stay with this bliss moment for 30 seconds. Now gently rub the palm and place it on your beautiful eyes, on your cheeks,
And you may open the eyes whenever you feel ready. थैंक यू ज्योति जी, बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन फील हो रहा है। मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी With my mobile data. आवाज आ रही है अभी? Yes. बहुत अच्छा लगा, और होप करता हूँ जो लोग भी हमसे जुड़े हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें हम ऐसा फील होता है कि काफी हम शांत हैं, पावरफुल आत्मा है। हम अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है, हम इस संसार में किस लिए आए हैं। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, कि अपने आप को 2 मिनट शांत करके ईश्वर के समक्ष में रखना, उनसे जुड़ना। क्योंकि ईश्वर के पास ही सब समस्याओं का, सब क्वेश्चंस का आंसर है। जब हम उनसे जुड़ते हैं तो हमें ऑटोमेटिक सभी समाधान, क्वेश्चंस के आंसर मिलना शुरू हो जाते हैं। तो थैंक यू ज्योति जी, इतनी ब्यूटीफुल चीज कराने के लिए। You're welcome. I also have few questions to ask you because I know that you are a very, very knowledgeable person when it comes to yoga, but not just yoga, when it comes to a lot of things which has a very, very spiritual take. So, since this topic is today's live is all about mental health, करेक्ट। anxiety, depression, panic attack, बहुत सारे लोग दर्द में हैं, पेन में हैं, एंड उनके लिए मैं जानना चाहूंगी कि योगा कैसे हेल्प कर सकता है। ऐसे कौन से पोस्चर्स है या योगा पोजेस है या प्रैक्टिसेस है जो आप बिलीव करते हो कि इन सब चीजों में हेल्प करता है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि योग क्या है। बहुत सारे लोगों को योग पता ही नहीं है, कि वो सिर्फ योगा मैट पे जो कर रहे हैं उस प्रैक्टिस को ही योग समझ रखते हैं। हम्म। तो पहली बात तो हमें योग को समझने की जरूरत है। तो योग के लिए कहा गया है श्रीमद् भगवत गीता में, समत्वम योग उच्यते। मतलब प्रत्येक स्थिति में जो हम कार्य कर रहे हैं, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में, प्रत्येक स्थिति में अपने आप को बैलेंस रखना। ये नहीं कि अगर मैं बहुत ज्यादा खुश हूं तो देखो मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। जैसे राम जी का मैं एग्जांपल देता हूँ, कि जब राम जी को कहा गया था आप कल अयोध्या के राजा, अधिपति राजा बनोगे, तब भी उनके चेहरे पे यही प्रसन्नता थी। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खुश थे, अरे लक्ष्मण सुनो कल तो मैं राजा बन जाऊंगा, मेरे बचपन का सपना पूरा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। जब अगले पल ही सैनिक आके कह रहे हैं नहीं, आपको अपनी पत्नी के साथ 14 वर्ष का वनवास जाना है, भरत जी राज्य करेंगे, तब भी उनके चेहरे पे प्रसन्नता थी। हम्म। तो अपने आप को बैलेंस की स्टेज में रखना ना, ये भी योगा कहलाता है। इसके साथ साथ कहा गया है योगा कर्मशो कौशलम, कार्यों में कुशलता का नाम ही योग है। कुछ पूछना चाह रहे हो ज्योति जी? नहीं नहीं, यहाँ पे एक्चुअली पावर कट है, सो ओके, आई एम जस्ट होपिंग दैट दिस लाइट डजंट गो ऑफ। इज ओके। चला भी जाएगा तब भी अच्छा है, मतलब हाँ, उसमें भी निखर के आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें हमारी आवाज काफी है। मेनली है, तो हो राइट। जाएगा। और ईश्वर, जब हम कुछ अच्छा हाँ। कार्य करते हैं ना, तो ईश्वर हमारा ऑटोमेटिक सपोर्ट करते हैं और परीक्षा भी लेते हैं। अगर राइट। परीक्षा ले रहे हैं इसका राइट। मतलब कहीं ना कहीं हम सही रूट पे हैं। तो अगर हो रहा है तो वो भी हम बहुत पॉजिटिव रूप में देख सकते बिल्कुल हैं उसको। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बात। हाँ, तो दूसरी चीज मैं बताना चाह रहा था, योगा कर्मशु कौशलम, जितने भी कार्य हम करते हैं ना, ईश्वर कृत कार्य, परोपकार के कार्य। अगर मैं किसी भूखे को खाना खिला रहा हूँ, जैसे माँ खाना घर पे खाना बना रही है, एनीथिंग, जो भी हम परोपकार के कार्य करते हैं वो सब योग के अंतर्गत आते हम्म। हैं। तो योग का मतलब, जब योग आ जाता है ना, तो योग मतलब जितने भी अच्छे कार्य संसार में चल रहे हैं वो सब योग के अंतर्गत है। तो हम्म। योगा से तो कोई परे रह ही नहीं सकता है। मेनली अगर मैं बात करूं योगासन, क्योंकि आपने मुझे पूछा कि मेंटल हेल्थ को जो बैलेंस कर सकते हैं ऐसे कौन से आसनास हैं। हम्म। तो आसनास में सबसे अच्छा आसन जो माना जाता है वो बाल आसन है। बाल आसन आप चाहो तो मेरे साथ भी कर सकते हो, हम लोग करते हैं इसे। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे सेटअप करता हूँ। तो बाल आसन कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। ओके,
तो इसके लिए ना सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ जाते हैं, लाइक दिस इज वज्रासना। वज्रासना वर्क क्या करता है? वज्रासन हमारे डाइजेशन को अच्छा करता है, क्योंकि क्या होता है ना, हमारा पेल्विक के नीचे आर्टरीज वेन्स में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत हद तक रुक जाता है, 60 to 70% कम हो जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा से ज्यादा हमारे स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जेजुनम, डोडेनम, इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, गाल ब्लैडर, पैंक्रियाज ग्लैंड में पहुंचता है। तो वो क्या करता है, पाचन को अच्छा करता है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को भी ये एक्टिव करता है। तो इसी में हमें क्या करना है, वज्रासन में ही बैठकर हमें धीरे से ऐसे फॉरवर्ड हो जाना है, फोरहेड को ऐसे ग्राउंडेड किया, और यहीं पे हम लोग धीरे धीरे, जैसे अभी आपने हमें इनहेल एंड एक्सहेल कराया था, उसी प्रकार से डीप इनहेल करेंगे और डीप एक्सहेल करेंगे। और जब भी हम सांसों को भर रहे हैं, तो उस समय पॉजिटिव एनर्जीज हमारे अंदर आ रही है। जब हम सांसों को बाहर निकाल रहे हैं, तो निगेटिव एनर्जीज हमारे शरीर के बाहर जा रही है। हमें ऐसा फील करना है प्रत्येक प्राण के साथ, प्रत्येक ब्रेथ के साथ। तो ज्योति जी, अगर आप मेरे साथ करना चाहो तो काफी अच्छा रहेगा। अभी तो मेरा पॉसिबल है? सेटअप टेबल चेयर ओके। है, आप ही करिए। ओके, तो बट एक बार फिर से देख लो। I will हाँ। encourage the people who are watching. ओके, परफेक्ट। तो मैं एक बार बैक से भी बता देता हूँ कि पैरों की पोजीशन क्या होनी चाहिए। नीज अगर आप ज्यादा से ज्यादा पास में रख के बैठोगे, तो ये आपके वज्र नाड़ी को और अच्छे से प्रेस करेगा। तो प्रयास करें, कुछ लोग क्या करते हैं ना, नीज को ऐसे डिस्टेंस कर दिया, तो नीज को ज्यादा से ज्यादा पास में ले आके बैठने का प्रयास करें। और फिर हमें जस्ट फॉरवर्ड होना है। और यहाँ पे जैसे कि अगर किसी लड़कियों में जैसे अगर पीरियड्स की समस्या है, या फिर डिस्मेनोरिया, मेनोपॉज, एंडोमेट्रियोसिस जैसे प्रॉब्लम्स चल रही है, या कुछ भी जेनाइटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो सामने बॉल्स्टर रख लो। बॉल्स्टर के ऊपर राइट साइड अपनी गर्दन को रखते हुए तब आप रिलैक्स कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है, इसे हम लोग कहते हैं बाल आसना। और सेकंड आसना अगर मैं एक्सप्लेन करूं, तो ये बहुत ही अच्छा आसन है, ये सुप्त बद्ध कोण आसना है। तो इसमें क्या करना है, हमें बटरफ्लाई के शेप में जस्ट ऐसे पैर को रखना है, और अपने डायफ्राम के पास में, मतलब नेवल से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे अपने हैंड को रखेंगे। लेफ्ट हैंड ऑलवेज नीचे रहेगा, राइट हैंड ऊपर रहेगा। और यहीं पे हमें फिर से डीप इनहेल, डीप एक्सहेल करना है। गहरी लंबी हल्की गहरी सांसों को भरते जाएंगे, हल्का लंबा गहरा सांसों को बाहर निकालते जाएंगे। और साथ ही साथ ईश्वर का चिंतन भी करते रहना है। जब आप बटरफ्लाई की पोज में बैठते हो, तो ये आपके रूट चक्रा को भी एक्टिव करता है। साथ ही साथ जो भी प्रॉब्लम्स रहती है रूट रिलेटेड, उन सबको भी क्योर करता है, अच्छा करता है, मैनेज करता है। तो काफी अच्छी टेक्निक है। तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आसन में कर सकते हैं, इसे दीवार के सपोर्ट से करेंगे तो और भी अच्छा है। तो इसमें करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा अपने मैट को पास में ले आना है। और मैट को पास में ले आने के बाद हमें अर्ध हल आसन की स्थिति में ऐसे रिलैक्स करना है। पैर को ले आए, हैंड को ऐसे साइड में रख लो, अन इनहेल एंड एक्सहेल करो, धीरे धीरे इनहेल कर रहे हैं, धीरे धीरे एक्सहेल कर रहे हैं। प्रत्येक चीज में आपका ब्रेथ अलाइनमेंट पे आपको 100% फोकस करना है। तो ये तीन आसनास वन ऑफ द बेस्ट हैं, जो कि मेंटल हेल्थ को बहुत ही अच्छे से बैलेंस करते हैं। उनके साथ साथ एक आसन में और ऐड करूंगा, विपरीत करणी। ये मुद्रा में आता है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, जालंधर बंद, उद्यान बंद एंड मूल बंद को भी ऐड करते हैं। तो इसे करते कैसे हैं, जैसे अपने पैर को 90 डिग्री पे लिफ्ट अप किया, धीरे से बैक को सपोर्ट किया, एंड यहाँ पे लिफ्ट अप किया। अब यहाँ से बटक्स को हल्का सा डाउन करना है, डाउन करते हुए चिन को ऐसे लॉक करना है, और जस्ट आपका जो पैर का टोज है, बिग टो, वो आंखों के नीचे आना चाहिए। और यहीं पे आपको होल्ड करना है। एनस रीजन, जेनाइटल पार्ट को भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, अब्डोमिनल को सक कर सकते हो, खींच सकते हो, चिन को लॉक कर सकते हो। जितनी देर तक आप इस पोजीशन में रहोगे उतना अच्छा है। ये विपरीत करनी है, ये सर्वांग आसन नहीं है। सर्वांग आसन में क्या होता है कि हम अपने स्पाइन को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेट रखते हैं, ये सर्वांग आसन है। इसमें विपरीत करनी ज्यादा फायदा करेगा, लाइक दिस। तो ये चार आसनास जो कि मेंटल हेल्थ को बहुत ही अच्छे से मैनेज करते हैं, जिनको भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, या फिर पैनिक अटैक आता है, नींद नहीं आती है, उन सब के लिए बहुत अच्छे आसनास हैं। Very, very nice, Aman. ओके, मैं I'm थोड़ा सा sure आगे आ जाता हूँ। I'm sure people have noted it down.
क्योंकि ये लग सिंपल रहे हैं, आप कर सकते हो, बहुत हेल्प मिलेगी आप सबको, मुझको, हर एक इंसान को, जी। when we bring yoga into practice. करेक्ट। तो ये चार आसनास मैं फिर से रिपीट And करता हूँ। सबसे पहले हमने किया था note it सुप्त down. बालासना। हाँ, वेरी अमेजिंग। तो आप लोग भी लिख सकते हो जो हमें सुन रहे हैं, सुप्त बालासना, बहुत अच्छा रिलैक्सिंग पोस्चर है। दूसरा आसना है सुप्त बद्ध कोण आसना, जिसमें हम लोग बटरफ्लाई के शेप में जस्ट लेट जाते हैं। तीसरा है दीवाल के सपोर्ट से अर्ध हल आसना। चौथा है विपरीत करणी मुद्रा। ये मुद्रा के अंतर्गत आता है क्योंकि इसमें हम बंधास को भी ऐड कर रहे हैं। हमारे तीन प्रकार के बंधास होते हैं, और मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। ये तीनों एक साथ ऐड होता है तो उसी को महाबंध कहते हैं। ओके। Thank you so तो आगे much. जी, Thank you so much. थैंक यू। तो मैं ज्योति जी आपसे भी कुछ एक चीज जानना चाहता हूँ, ये मेरे माइंड में बहुत समय से है कि ऐसे कौन से मेथड हैं जो कि सेल्फ डाउट से निकलने में हमें मदद करते हैं। जैसे कभी कभी हम क्या फील करते हैं कि यार ये चीज सही है, ये चीज गलत है। तो ऐसे कौन से तरीके हैं चक्रा हीलिंग के थ्रू या किसी भी थेरेपीज के थ्रू जो आप कराते हो अपने क्लाइंट को, क्या आप हमें बताओगे? Yeah, sure. सेल्फ डाउट बहुत बड़ी एक, मतलब, प्रॉब्लम है, बट हम्म। एज आई सेड, कोई ध्यान नहीं देता है अपनी मेंटल हेल्थ की तरफ। सब लोग बहुत हल्के में लेते हैं अपने आप को। जी। क्यों, इज माई क्वेश्चन। बिकॉज वैसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंड इनफैक्ट वी वी आर आवर टेम्पल। हम जैसे मंदिर में जाते हैं तो कैसे रिस्पेक्ट के साथ जाते हैं, कैसे अच्छे इंटेंशन के साथ जाते हैं, एक अच्छे विचारों के साथ जाते हैं, हमें वैसे ही अपने आप के अंदर जाना है। बट द क्वेश्चन इज हाउ। क्योंकि लोग जूझ रहे हैं बहुत सारी एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स की वजह से, इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से, राइट? सो जी। सेल्फ डाउट पहले बात करते हैं कि अराइज होता कहाँ से है। हम्म। बचपन में ना, 7 साल की उम्र तक हम चीजें ले रहे होते हैं, डेटा फीड कर रहे होते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, एंड यू हैव नो आइडिया हाउ पावरफुल इट इज। बट जी। उससे भी ज्यादा पावरफुल इज आवर कॉन्शियस माइंड, अगर हम उसको टैप करना सीख जाएं तो। बट वी नीड टू फर्स्ट नो हाउ टू हैंडल आवर थॉट्स। तो उसके लिए वेरी सिंपल थिंग्स, बट प्रैक्टिस में लाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देर आर सो मेनी थिंग्स दैट ऑलरेडी पीपल नो कि ऐसे करने से ऐसे होगा, वैसे करने से वैसे होगा। अब कुछ जी। करोगे उसके प्रति तो यू विल गेट द रिजल्ट्स। बट इफ यू विल कीप कंप्लेनिंग, इफ यू विल कीप सेइंग थिंग्स लाइक आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दैट, और उसने ऐसे कैसे बोल दिया, किसी और के वैलिडेशन पे खुद को नहीं जज करना है। जज जी। करना है तो देखो 2 दिन पहले कैसे थे या 10 साल पहले कैसे थे और आज कैसे हो। बेहतर हो तो वेरी गुड, यू आर डूइंग ग्रेट, उस पे ध्यान देना है। अब जैसे मैंने कहा कि 7 साल की उम्र तक ना हमें नहीं समझ होती है, लॉजिकल माइंड चलता ही नहीं है। एक बच्चे ना एक अलग ही खूबसूरत सी दुनिया में, एक ड्रीम लैंड में होते हैं, जी। राइट? उनको नहीं समझ आ रहा। अगर जैसे किसी बच्चे ने कहा कि पापा मुझे वो खिलौना चाहिए, अब पापा के दिमाग में तो 3-4 प्रॉब्लम चल रही है कि अरे क्रेडिट कार्ड का डेट है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये मैनेज करना है, वो करना है, एंड ऑफिस में कुछ चल रहा है, प्रेशर है वर्क का। बट बच्चा, नहीं पापा चाहिए चाहिए चाहिए, तो उसको क्या मिलेगी? डांट मिलेगी, टॉय नहीं मिलेगा। तो उसको नहीं समझ आएगा कि वो डांट उस छोटे से दिमाग को क्यों पड़ी, पर वो फीड हो जाती है अंदर हम्म। बच्चे के दिमाग में। सो जब वो बड़ा होता है तो वो चीजें मांगने से डरता है। वो फील करता है, नो आई डोंट डिजर्व इट, आई डोंट, दैट्स व्हाई आई डोंट गेट इट, यू नो, ऐसी चीजें। ऐसे ही हमारा वायर हुआ है, नर्वस, सॉरी, द न्यूरॉन सिस्टम। सो हमें उस लेवल पे काम करना होगा टू गेट रिड ऑफ
these problems like doubting oneself. नहीं तो it is like अब कुछ करोगे, कुछ सोचोगे, 1-2 दिन कर पाए, बट वापस you're back to square one, right? Correct. So सबसे पहले हमें अपने आप से क्वेश्चन करना है कि अगर मैं ऐसे रिएक्ट कर रही हूं तो क्यों कर रही हूं, अगर मैं वो चीज नहीं कर पा रही हूं तो क्यों नहीं कर पा रही हूं, किसी और की वजह से या खुद की वजह से। स्टॉप कौन कर रहा है मुझे? मैं खुद। जब हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं ना, अपने आप को क्वेश्चंस पूछते हैं, तो जवाब अंदर से ही आते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ, लोग सुन रहे हैं, बट मेरी बातों से उनको जवाब नहीं मिलेगा। जब वो खुद बैठ के ये क्वेश्चंस खुद से पूछेंगे, that will help them. But how to do that, I can tell. So number one thing is sit with your own thoughts. देखो एक डिस्टेंस से क्या क्या प्रॉब्लम है या क्या क्या है। यू विल रियलाइज कि प्रॉब्लम तो बना रखी है ही नहीं, बट वहां तक वो रियलाइजेशन के लिए भी देर आर मल्टीपल लेयर्स जिसको क्रॉस करना होता है। बट to cross those layers also you need to do certain things. So सबसे पहली चीज, टेक ऑफ, declutter सारा गंद जो दिमाग में भरा है, एंड जो लोग हैं who are not good energies, उनको डिस्कार्ड करो। अपने दिमाग से बहुत सारी चीजों को एलिमिनेट करो कि नो, दिस इज नॉट गुड फॉर मी, दिस थॉट आई कैन नॉट थिंक। सेल्फ डाउट, क्यों भाई सेल्फ डाउट? नो, आई कैन नॉट थिंक लाइक दिस, डिस्कार्ड। फिर लोगों को, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एनर्जी सक करते हैं, दे ड्रेन दी एनर्जी, उनको एलिमिनेट करो, भगाओ, या फिर गोस्ट कर दो, कुछ भी कर दो, बट जस्ट डोंट एंटरटेन दोज एनर्जीज, राइट? डोंट एंटरटेन योर नेगेटिव थॉट्स। थॉट्स आएंगे, अब दिमाग का काम है, वो लेकर आएगा, बट उनके साथ इंटरेक्शन नहीं करना है। वी नीड टू लर्न कि हमें ऑब्जर्व कैसे करना है। ऑब्जर्व करेंगे बट इंटरेक्ट नहीं करेंगे। That's the only way possible for you to save yourself from your own chaos mind. तो दूसरा तरीका ये है। तीसरा, अब जैसे हम चीजें निकाल रहे हैं जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमें रिप्लेस करनी है विथ गुड थिंग्स, धीरे धीरे, वन डे एट अ टाइम। सो ह्यूमंस आर क्रिएचर्स ऑफ हैबिट। हमें वो बनानी है, हमें देखना है कि हमें क्या चाहिए। that why factor has to be so strong कि nothing should stop us, because हम उस लेवल पे नहीं सोचेंगे ना, तो नहीं निकल सकते हैं सेल्फ डाउट से। हम फिर उन चीजों में उलझे रहेंगे, राइट? एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या चीज अपने आप को फीड कर रहे हैं। द फूड दैट वी फीड, द सोशल मीडिया से जो द कंटेंट दैट वी फीड आवर सेल्फ, द पीपल दैट वी आर अराउंड, सब कुछ डिक्लटर करना है माइंडफुली, राइट? वो बहुत एक जरूरी चीज है, क्योंकि जब हम इन सब चीजों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो आधी चीजें एलिमिनेट हो जाएगी। देयर विल बी स्पेस एंड यू हैव द space, and you can see that space and you can do so much with that space. That's the realization, that's the kind of thinking that you must be seeking towards. So it is very important to completely change how you think and replace it with the good things. So हमें habit build करनी है, rewards देने हैं अपने आप को। अगर कुछ किया है तो इवन इफ इट इज अ लिटिल थिंग, कि मान लो बहुत दिनों से लॉन्ड्री पड़ी हुई थी, आज मैंने लॉन्ड्री कर ली, अपना काम खत्म कर लिया, डन एंड डस्टेड। अप्रिशिएट योरसेल्फ, कुक समथिंग फॉर योरसेल्फ, और टेक योरसेल्फ आउट, गिव योरसेल्फ रिवॉर्ड। क्योंकि जब हम रिवॉर्ड देते हैं ना अपने आप को, हमारे माइंड को बहुत अच्छा लगता है, तो हमारा माइंड उस लालच में करेगा चीजें, अच्छी चीजें। सो दैट इज वन वे। छोटी छोटी विंस को सेलिब्रेट करो। ओ, आज मैं 8 घंटे सो पाई, वेरी नाइस, टैप ऑन द बैक, टेक योरसेल्फ आउट। एम्पथाइज करो। अगर आप खुद को प्यार नहीं कर पा रहे हो ना, तो लोगों को प्यार करो, क्योंकि जब खुद के पास नहीं है वो करने के लिए प्यार, क्योंकि दबा हुआ है कहीं ना कहीं बहुत सारे दर्द एंड पेन एंड ऑल ऑफ दैट में,
जब when we give that energy, we get that energy. Automatically self doubt की जगह बचेगी ही नहीं. Love and pain cannot coexist together. One has to go, then the other will come. So you have to send that. इसीलिए declutter, declutter, declutter. Get the good things, get the good things, and get the good things. So this is something which was very important for me to deep dive into this in detail. परफेक्ट। बहुत आपने डिटेल में और अच्छे से आंसर्स दिया है कि अपने आप को अप्रिसिएट करना काफी इंपॉर्टेंट होता है, अपने आप से सेल्फ लव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि अगर बाई चांस अगर हम कुछ गलत भी कर दिए तो उस चीज का रिग्रेट नहीं होना चाहिए, अरे यार मुझसे गलती हो गई मुझसे, True. अरे चलो कोई बात नहीं, भूत जैसे कहा भी गया है ना श्रीमद् भगवत गीता में, भूत का शोक मत Hmm. करो, वर्तमान की आसक्ति मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, True. और वर्तमान में जीने का प्रयास करो। तो बिल्कुल बिल्कुल. मेनली यही चीज होता है कि अपने आप को रिस्पेक्ट करना, जैसे सेल्फ लव मैं तो बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ, आपको बताऊं, हाँ. मे बी शायद मैं स्वार्थी हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता हूँ, उस लेकिन मैं 99% अपने से प्यार करता हूँ। कोई भी मुझसे पूछता है ना, मैं संसार में सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसे देता हूँ, मैं संसार में सबसे ज्यादा प्राथमिकता अपने आप को देता हूँ, माता पिता को भी नहीं देता जितनी मैं अपने को देता हूँ। आई एम सो सॉरी, मैं सेल्फिश लग रहा हूँ, बट मैं ऐसा ऐसा हूँ। ही होना चाहिए. माय हस्बैंड ही सेज स्वार्थी बनो बट प्यार का लालच, यू नो, करेक्ट। ईगो की तरफ नहीं, प्यार खुद को इतना हाँ। दो हमेशा, हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में. और ऐसा जी। ही होना चाहिए. मैं सच में चाहती हूँ कि लोग अवेयरनेस पे ध्यान दें, माइंडफुल होने पे ध्यान दें, स्लो लिविंग पे ध्यान दें, अपने आप को वॉच करें, हर थॉट जी। केयरफुली. एंड कोई चांस ही नहीं होगा कि वो प्रॉब्लम्स में फंसे रहें. दे विल गेट आउट ऑफ इट. दैट्स हाउ द यूनिवर्स वर्क्स. वाइब्रेशंस हम्म। आर रियल. ज्योति जी, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं अभी तक, किसी ने कुछ पूछा है या फिर अभी पूछना चाहते हो, तो हम लोग अभी भी आंसर दे सकते हैं, अगर I'm आपको just going through. I don't see questions. I can ask them if they have any questions in mind. ओके। Please write it down, everyone, if you are having any questions. एक लोगों ने लिखा है, आई वुड रिक्वेस्ट टू प्लीज डू लाइव दिस डेली वन ट्वाइस एज ए वीक। थैंक यू, Thank जरूर you हम so लोग ऐसा प्लान करेंगे। much. Thank you so एंड much. मैं जल्दी आ रहा हूँ मुंबई, एक लोगों ने पूछा है मुंबई कब आ रहा हूँ, एंड आई कम टू करेक्ट टाइम, आई नीड इट। परफेक्ट। तो बहुत सारे क्वेश्चंस, और ज्योति जी जब बोलती हैं तो जैसे लगता है जादू, तो उनसे मेरी बहुत सारी चीजों पे बात भी हुई है, और कभी कभी मुझे भी कुछ सजेशन चाहिए रहता है कि मैं क्या करूं, तो मैं इनसे जरूर पूछता हूँ। तो काफी इंपॉर्टेंट होता है कि इन सब चीजों को समझना जानना। ओके। I would like to ask you questions. ओके। मैंने तो लिख लिया था कि मैं थोड़ी सी भुलक्कड़ हूँ, मैं भूल जाऊंगी. So I make sure that, you know, if I'm interacting with someone on a जी। soul level, connection level, मैं चाहती हूँ कि मैं सब पूछ लूँ जो मेरे मन में है, ताकि सारी क्यूरियोसिटी को एक जवाब मिल जाए. राइट. सो विथ दिस बीइंग सेड, आई न्यू कि मुझे आपसे ये चीज तो पूछनी ही है, बिकॉज जितने भी लोग देख रहे हैं उनको बहुत हेल्प होने वाली है. किसी ने आपको कहा सेज मिरेकल। Thank you so much. You're double miracle, because if you're seeing miracle in me, that means you first see it in you and then you see it in others. So it's a करेक्ट। mirror thing, you know. So thank you so much. हाँ, तो this question is dedicated to everyone. Everyone wants to know this, Aman, कि अपनी इमोशनल हेल्थ पे योगा पर्सपेक्टिव से हम कैसे हेल्प ले सकते हैं योगा के थ्रू. ओके। ब्रीदिंग टेक्निक्स ऐसे जो है, या विच कैन हेल्प वन पर्सन. मान लो सब लोग स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, राइट. जी। बहुत लोगों के समझ के परे है ये वाला प्लेन, जिसमें जिस लेवल पे या जिस प्लेन में मैं बात कर रही हूँ. क्योंकि किसी को बोरिंग लगता है, या फिर कोई लाइन नहीं कर पाता है, या फिर किसी को समझ नहीं आती है क्योंकि वो कभी ज्यादा इंटरेक्ट नहीं किए हैं स्पिरिचुअल नॉलेज से. बट योगा, everyone is aware of it. I
want you to take this opportunity and talk about how you can help people with their mental and emotional pain. ओके, तो इसमें सबसे पहले हमें समझना है, जैसे आपने कहा कि कुछ ब्रीदिंग टेक्निक, और ब्रीदिंग टेक्निक इसमें इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो उससे पहले हम जानते हैं, जैसे कि एक श्लोक है, ये मैंने फर्स्ट ईयर में जब मैं ग्रेजुएशन पतंजलि यूनिवर्सिटी में कर रहा था, तो उस समय हम लोगों को एक श्लोक पढ़ाया गया था हठयोग प्रदीपिका में। उसमें कहा गया था, चले बाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्, योगी स्थाणुत्वम आपनोति ततो वायुम निरोधे। मतलब when the breath wanders or become irregular, the mind is also become unstable. But when the breath is calm, the mind is also calm and yogi lives longer. Therefore, one should control the breathing. तो चले बातें, अगर हमारा वायु चल रहा है ना, तो हमारा क्या हो रहा है, मन चलता है, वो चलता रहेगा चलता रहेगा। जब आप बहुत ज्यादा थिंकिंग करते हो ना, उस समय अपने ब्रेथ पे देखना, आपका ब्रेथ काफी फास्ट रहता है। Hmm. निश्चले निश्चलम भवेत, नहीं चलता है क्या, वात, वात कहते हैं वायु को, तो क्या होता है, हमारा जो थिंकिंग है, चित्त कहते हैं एक तरीके से माइंड को, तो वो भी कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो Very, इससे ये पता चलता है कि अगर हम अपने ब्रेथ को कंट्रोल कर लें, तो हम अपने माइंड को भी कंट्रोल में कर सकते हैं। तो इसके लिए very true. बहुत ही, I, हाँ, I want to clap here थैंक because यू। what you just said, no, I just pray that people understand the core of what you just said. It is so, it's so wise. थैंक यू। So I'm very happy doing this, connecting and getting this knowledge. करेक्ट, क्योंकि आपने भी जो सबसे पहले मुझे टेक्निक कराई अभी अभी, तो उसमें भी मैंने देखा कि ब्रेथ, एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन ब्रेथ, क्योंकि ब्रेथ सिर्फ ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर रहा है, वो Mm. प्राण को कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि हमारे Mm. शरीर में 5 प्रकार के प्राण होते हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। उसमें से प्राण वायु सबसे इंपॉर्टेंट वायु रहती है। Mm. तो Mm. प्राण वायु के साथ, जैसे अगर हम सोच रहे हैं कि हमारे आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा से ज्यादा सप्लाई होता है, तो हमें डीप इनहेल करना चाहिए। उसके साथ साथ एनर्जी भी कैरी हो रही है, True. जो Chakra is वातावरण, energy. हाँ, Chakra करेक्ट, also prana shakti only. हाँ, Right. Very करेक्ट। right. तो ये तो इसमें ना बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक है, जो कि इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को बैलेंस करने के लिए है। जैसे मैं अगर आपको फर्स्ट टेक्निक कराऊं, सेम है, कुछ नहीं करना है। आज जैसे अभी आपने मुझे कराया था ना, मैं Hmm. आपको सिर्फ 3 ब्रेथ Sure. कराऊंगा। आपको क्या करना है, राइट हैंड को अपने चेस्ट के पास में रखना है, अपने हार्ट चक्र के पास में, और लेफ्ट हैंड को अपने मणिपुर चक्र के पास में रखना है। ओके, यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, 5 सेकंड का इनहेल करेंगे, 10 सेकंड का एक्सहेल करेंगे, बहुत ही धीमे धीमे काउंट के साथ। इनहेल 1, 2, डायफ्राम एक्सपैंड 3, 4 एंड 5। स्लोली एक्सहेल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Once again, inhale, chest expand, ribs cage open. 1, 2, diaphragm expand. 3, very slow. 4 and 5. Slowly exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Final round. Take a deep inhale. 1. Diaphragm expand more. 2. Perfect. 3, 4 and 5. Slowly exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आंखों को बंद ही रखेंगे, फील करेंगे अपने एनर्जीज को, धीरे से अपने गर्दन को झुकाएंगे, अपने शरीर की तरफ दर्शन करेंगे, शरीर का दर्शन। देन धीरे से आंखों को ओपन करते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। परफेक्ट। धीरे से ज्योति जी, कैसा लगा आपको? I become quiet when I feel relaxed. ओह, एक लोगों ने अभी जस्ट प्रश्न किया है कि आपने डबल ब्रीथ आउट क्यों कराया है। तो मैं आपको ये मेंशन करना चाहता हूँ कि इनहेल से ज्यादा इम्पोर्टेंट एक्सहेल है।
जैसे इसमें होल्डिंग क्रिया भी ऐड होती है। करने को तो हम इसमें होल्ड भी करते हैं, क्योंकि प्राणायाम तब तक इनकम्प्लीट माना जाता है जब तक उसमें होल्डिंग क्रिया ना हो। तो एक्सेल डबल क्यों है, ट्वाइस क्यों है, मतलब उसको हम डबल क्यों कर रहे हैं? मेनली क्या है ना, कि हमारी बॉडी में जब हम इनहेल करते हैं तो ऑलमोस्ट 78% तो नाइट्रोजन गैस आती है, 21% के आसपास ऑक्सीजन गैस हम कैरी करते हैं, और 0.3% हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी लेते हैं। लेकिन जब हम एक्सेल करते हैं तो एट दैट टाइम 78% का 78% नाइट्रोजन गैस चला जाता है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। मेनली क्या है, 16.4% हम लोग ऑक्सीजन को ही बाहर निकालते हैं। एंड प्लस पॉइंट क्या है कि 4.5% के आसपास हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनाती है, पेड़ पौधे हैं वो लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बनाते हैं। तो मेनली हमें ये समझना है कि अगर हम 21% सांस ले रहे हैं और 16.4% हम लोग एक्सेल कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब हमें ऑक्सीजन की ज्यादा नीड नहीं है। जैसे अगर मैं आपको चार सेब दे रहा हूँ खाने के लिए रोज रोज, आप एक सेब 3 सेब बार बार मुझे लौटा दे रहे हो, कह रहे हो कि नहीं अमन मुझे सिर्फ एक ही सेब की भूख है, और ऐसे आप मेरे साथ 10 से 15 दिन से कर रहे हो लगातार। तो एक समय के बाद मैं क्या करूंगा कि मुझे समझ में आ गया ज्योति जी जब भी सेब खाती है तो एक ही खाती है, तो मैं एक पूछूंगा या दो पूछूंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा कि आप 5 खा लो 6 खा लो, क्यों खा लो। तो इसीलिए इनहेल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्सेल। एक्सेल जितना आप लंबा करोगे ना उतना अच्छा रहता है। और अगर आपने एक्सेल को मेंटेन कर लिया ना, आप अपने होल्डिंग कैपेसिटी को ऑटोमेटिक इंक्रीज कर लोगे। मैं अपनी क्लास में सबसे ज्यादा ध्यान रखता हूँ एक्सेल करने का, धीरे धीरे सांस। मेनली क्या होता है ना, लोग क्या करते हैं ना, सांस को इनहेल करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, ब्रेथ को होल्ड करते हैं, जब ब्रीद आउट करने लगते हैं ना तो कैसे करते हैं, माउथ से एक तो करने लगते हैं और फास्ट करते हैं। वहीं पे आपको कंट्रोलिंग चाहिए, वहीं पे क्या करना है, ब्रेथ को कंट्रोल करना है। तो पहली टेक्निक है जो इमोशनल हेल्थ को भी बैलेंस करती है, साथ ही साथ ये हमारे पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को भी एक्टिव करती है, डाइजेशन भी अच्छा करती है। उसके साथ साथ सेकंड टेक्निक है, क्योंकि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, तो 72,000 नाड़ियों में भी दो प्रमुख नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी। ईड़ा नाड़ी को हम लोग को क्या करना है, ईड़ा नाड्याह पिंगला नाड्याह च घर्षणेन सुषुम्ना नाड्याह जागरणम भवति। मतलब जब हम ईड़ा नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी का घर्षण करते हैं, मतलब इनहेल किया इससे, फिर एक्सेल किया अपोजिट से, फिर इनहेल किया सेम नॉस्ट्रिल, एक्सेल किया अपोजिट, तो उससे क्या होता है, सुषुम्ना का जागरण होता है। और सुषुम्ना का जागरण योग का परम लक्ष्य है, कि योग अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो सुषुम्ना अगर एक्टिव है, आपका मेंटल हेल्थ आपके 100% कंट्रोल में है। तो इसके लिए हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम सेम रेशियो से कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हम होल्ड भी करेंगे, सिर्फ एक राउंड करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। जो लोग मुझे देख रहे हैं आप भी कर सकते हैं, आप अपनी कैपेसिटी भी पता कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 सेकंड का इनहेल, 10 सेकंड का होल्ड और 10 सेकंड का एक्सेल करेंगे, मतलब 1:2 का रेशियो हमारा रहेगा। और इसमें सिर्फ हम आभ्यंतर कुंभक ऐड कर रहे हैं, बाह्य कुंभक ऐड नहीं कर रहे हैं। बाह्य कुंभक भी एक होता है कि सांसों को निकालकर होल्ड करना, आभ्यंतर कुंभक मतलब सांसों को भर के होल्ड करना। Okay. ओके, I'm तो हम all ready. ओके Guys, everyone ready? Let's do this with Aman. ओके चलो, Okay. आंखों को बंद करो, अपने हैंड को ना ये ओमकार मुद्रा में ऐसे रख सकते हो। लास्ट की 2 उंगली ओपन है एंड अंगूठा, तो इसको आपको राइट नॉस्ट्रल को अंगूठे से बंद करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रल को आपको लास्ट की 2 फिंगर से प्रेस करना है। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है। चलो आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, स्पाइन स्ट्रेट। नाउ इन राइट नॉस्ट्रल बंद, लेफ्ट से धीरे धीरे इनहेल करिए, 1 2 3 4 एंड 5। दोनों नॉस्ट्रल बंद, ब्रेथ होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट से एक्सेल धीरे धीरे, 1 राइट नॉस्ट्रल से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल सेम नॉस्ट्रल राइट से, 1 2 3 4, more expand diaphragm, 5। दोनों नॉस्ट्रल बंद, ब्रेथ होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, धीरे धीरे लेफ्ट से एक्सेल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आंखों को बंदी रखेंगे, हाथों को नीज के पास, एंड रिलैक्स। हम लोगों ने लेफ्ट से इनहेल किया, ब्रेथ होल्ड किया, राइट से एक्सहेल किया, फिर राइट से इनहेल किया, ब्रेथ होल्ड किया, लेफ्ट से एक्सहेल किया। ये एक राउंड कंप्लीट हुआ है। इसी प्रकार से आप अगर अपने इमोशनल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को बैलेंस करना चाहते हो, अपने नर्वस सिस्टम को अच्छा रखना चाहते हो, अपने ब्रेन को सक्रिय रखना चाहते हो, तो आप इससे ज्यादा 10 से 15 मिनट सुबह शाम डेली प्रैक्टिस करें। ओके, धीरे से गर्दन को झुकाएंगे ज्योति जी, एंड आंखों को ओपन करते हुए जस्ट रिलैक्स हो जाएंगे। जब भी हम अपनी आंखों को ओपन करते हैं ना, तो सबसे पहले हम अपनी बॉडी की तरफ देखते हैं, क्योंकि हमने क्या किया है ना, जैसे हमने 1 मिनट प्रैक्टिस की, 2 मिनट प्रैक्टिस की, तो इसमें होता क्या है ना कि हमारे शरीर में एनर्जीज आती है, और सबसे ज्यादा 70% एनर्जी कैरी करते हैं हमारी आंखें। तो अगर हम एनर्जी को क्रिएट करके अपने अंदर उत्पन्न कर रहे हैं, तो फिर हम सामने वाले को देख के या किसी चीज को देख के हम अपनी एनर्जी को वेस्ट क्यों कर रहे हैं। जैसे गांधारी माँ थी ना, तो उन्होंने जब लास्ट दुर्योधन बच गए थे, तो उन्होंने दुर्योधन से कहा था कि दुर्योधन आप स्नान करके आओ, मैं आपको देखूंगी, आपका शरीर वज्र का हो जाएगा। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि मैं आपको आशीर्वाद दे दूंगी, आपका शरीर वज्र का हो जाएगा, मैं आपको टच कर दूंगी, आपका शरीर वज्र का हो जाएगा। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि आंखों में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है हमारे। तो अपनी, हाँ, अपने शरीर पे ही अपनी एनर्जी देना, और उससे क्या होता है, जो सामने से लाइट आती है ना, वो बहुत डार्क भी कभी कभी हमारी आंखों के लिए अच्छी नहीं होती है। तो सबसे पहले हम गर्दन को झुकाते हैं, फिर आंखों को खोलते हैं। Very एंड beautiful explanation given that why to look to yourself. करेक्ट। Right? एंड एक लास्ट छोटी सी टेक्निक, इसका भी मैं आपको सिर्फ 2 राउंड कराऊंगा, ये फाइनल है, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम वन ऑफ द बेस्ट प्राणायाम। Yes. जब हम ओम की चैंटिंग करते हैं, हम भ्रामरी चैंटिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है, गुंजन उत्पन्न होता है। Hmm. उसमें गुंजन में होता क्या है, जैसे कि जब हम मकारा चैंटिंग करते हैं, Vibration. वाइब्रेशन। Vibration. Good. करेक्ट। तो वाइब्रेशंस, जैसे कि जब हम अकारा की चैंटिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे नेवल के नीचे अगर आप फील करेंगे, ऑटोमेटिक नेवल चक्र मतलब रूट चक्र, स्वादिष्ठान चक्र एंड मणिपुर चक्र, Hmm. इन चक्रास के पास में हल्की हल्की वाइब्रेशंस होगी। जब हम उकारा की चैंटिंग करते हैं, तब हमारे हार्ट चक्र के पास में, थ्रोट चक्र के पास में वाइब्रेशंस होती है। चक्र के बारे में अभी सब कुछ ज्योति जी ने बताया, इसलिए मैं ज्यादा चक्र के बारे में नहीं बताने वाला, क्योंकि मुझसे बहुत अच्छा वो बताती हैं। एंड जो फाइनल चक्र है, जहां पे बहुत ही अच्छे से वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, वो हमारा होता है थर्ड आइस चक्र अच्छा. एंड हमारा क्राउन चक्र, जो सहस्त्रार चक्र भी कहते Hmm. हैं। तो जब हम मकारा की चैंटिंग करते हैं, तो इससे क्या होता है, Hmm. पूरे माउथ से लेके चेहरे के पास में, ब्रेन के पास में, हाइपोथैलेमस ग्लैंड के पास में क्या होता है, स्टिमुलेशंस होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे जितने भी हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, डोपामीन, सेरोटोनिन, इन सबको क्या करता है, मैनेज करता है। और ये अगर आपकी बॉडी में अच्छी मात्रा में आपको मिल रहे हैं, कॉर्टिसोल की मात्रा को खत्म करता है ये। तो ये क्या करता है, अगर आपको अच्छी मात्रा में मिल रहे हैं, तो आपका मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिक अच्छा रहेगा, इमोशनल हेल्थ अच्छा रहेगा। तो हम लोग सिर्फ 2 राउंड की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है Sure, ज्योति जी। sure. तो Let's do it. हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें इससे षडमुखी मुद्रा रखनी चाहिए, इंडेक्स फिंगर को यहाँ पे रखना चाहिए, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर अपना थोड़ा सा नीचे रख सकते हैं, लिप इधर के लिप के पास में स्मॉल फिंगर को रख सकते हैं। लेकिन मेरी एक टेक्निक है, इसे मैंने सेल्फ मतलब क्या किया है ना, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, बहुत सारी टेक्निक्स की प्रैक्टिस करता हूँ। मुझे फिर फील करता हूँ कि कौन सी टेक्निक मुझे ज्यादा सूट कर रही है। तो मैं ज्यादातर प्रैक्टिस करता हूँ, इंडेक्स फिंगर को फोरहेड पे रखा, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर को आंख पे रखा, स्मॉल फिंगर को गाल पे। इससे अगर आप करके देखोगे, और जो लोग देख रहे हैं अभी भी कर सकते हैं, आप इसे करके देखो, अगर आपके सामने लाइट भी है ना, तो वो लाइट आपको दिखेगी नहीं। और अगर मैं सिर्फ इंडेक्स फिंगर को रख रहा हूं, आप अपनी लाइट को देख सकते हो आसपास की। तो मुझे लगता है कि 2 फिंगर्स से कवर करने से क्या होता है ना, लाइट भी आपके सामने से चली जाती है, तो ये आपको फोकस करने में थोड़ा सा हेल्प करेगी। तो परफेक्ट, सही, अच्छे से मुद्रा हमने बना ली है। अंगूठे से कान को हल्का सा बंद किया, यहीं से 3 बार भौरे के समान गुंजन करेंगे। उससे पहले डीप इनहेल,
Once again, inhale. हाथों को नीज के पास एंड रिलैक्स। एनर्जीज को फील करेंगे सिर्फ 5 सेकंड। जो भी भौरे के समान गुंजन के माध्यम से स्टिमुलेशंस हुआ है पूरे ब्रेन के पास में, उसे फील करते रहना है। वंस अगेन गर्दन को नीचे की तरफ झुकाएंगे, आंखों को खोलेंगे एंड रिलैक्स हो जाएंगे। तो जो लोग भी देख रहे हैं ना, वो 10 राउंड, 11 राउंड, 15 राउंड, 25 राउंड तक भी प्रैक्टिस कर सकते हो। किसको नहीं करना चाहिए, मैं एक चीज मेंशन करूंगा इसमें। जिनको भी लो बीपी है, ज्यादा बीपी लो रहती है, या 60 के आसपास चली जाती है बीपी, प्लीज भ्रामरी प्राणायाम को 3 या 5 राउंड मैक्सिमम करें। लो बीपी वालों को भ्रामरी नहीं करना है, क्योंकि ये क्या करेगा, हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को और स्लो करेगा, दिल की धड़कन को और स्लो करता जाएगा। तो हाई बीपी वाले इसे 25 राउंड, 30 राउंड, यहाँ तक कि 51 51 राउंड, 51 राउंड भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लो बीपी वालों को ज्यादा नहीं करना चाहिए, बाकी सभी लोग कर सकते हैं भ्रामरी की चैंटिंग। लेटे लेटे कर सकते हो, जब आप बिस्तर पे लेटने जा रहे हो उस समय कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो उसमें। अच्छा ज्योति जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे भी कुछ प्रश्न रहते हैं, क्योंकि मुझे जब आपका स्ट्रेंथ पता चला कि आपको चक्रास की बहुत अच्छी नॉलेज है, ओरा रीडिंग आप करते हो, तो मुझे मेरे अंदर थोड़े से कुछ प्रश्न हैं। कि मैंने बहुत सुना है जैसे चक्रा के बारे में कि चक्रा ऐसे वर्क करता है, ये होता है। कभी कभी तो सही बताऊं तो मैं, बीच में ऐसा मेरे साथ हुआ था कि मैं बिलीव ही नहीं कर रहा था। बिलीव इन द सेंस, फिर मैं क्या कर रहा था, एक गुरुजी ने मुझे गुरुकुल में प्रैक्टिस कराई चक्रा के बारे में, और मैं रूट चक्रा को कनेक्ट कर पा रहा था। रूट चक्रा को कनेक्ट करता था, मुझे बहुत आनंद की प्राप्ति होती थी, बहुत ज्यादा। लेकिन एक समय के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे बहुत अच्छे लग रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि कोई एनर्जी मुझे चारों तरफ से घेर रही है, चारों तरफ से घेर रही है, घेर रही है, घेर रही है, और मुझे वो एनर्जी मतलब कहीं ना कहीं मतलब दबा रही है। तो मैं उस जगह पे थोड़ा सा डर गया था कि क्या मुझे ये प्रैक्टिस कैरी ऑन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि चक्रा और ओरा रीडिंग कैसे वर्क करता है, और इसके प्रोसेस के बारे में कि क्या है, कैसे है, और आप अपने क्लाइंट को कैसे चक्रा और ओरा रीडिंग कराते हो। श्योर। सो सबसे पहली बात, डरो मत। वो एनर्जी एक बहुत पावरफुल एनर्जी है, करेक्ट। सुंदर एनर्जी है। जस्ट बिकॉज हमने वो एक्सपीरियंस नहीं की है या फिर पहली बार कर रहे हैं, तो इट इज न्यू फॉर आवर माइंड टू प्रोसेस। जी। तो हमारा माइंड क्या करता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की फाइल्स खोलता है, डर वाली फाइल या डाउट वाली फाइल, एंड हमें वो फील कराता है, क्योंकि उसके माइंड में ना ये एक्सपीरियंस है नहीं। जी। तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है वो जो एनर्जी महसूस हो रही है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने अभी तक नहीं वो इंफॉर्मेशन डाउनलोड की है, पहली बार हो रहा है उसके लिए। तो हम्म। मैं इस चीज मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि keep practicing it even if you're feeling something fearful, because it is a good energy. अगर आप चक्रा मेडिटेशन कर रहे हो या फिर जस्ट मेडिटेशन कर रहे हो एंड यू फील वाइब्रेशंस इन योर body, your auric body or your physical body, do not stop. It is only there to give you the light that you really really deserve because you are asking for it, है ना? तो do not be scared, अच्छा, एक just चीज experience. मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें। Sure, जैसे sure. कि मैं जब प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे बहुत ही आनंद की प्राप्ति हो रही थी, क्योंकि मैं 5 साल गुरुकुल में पढ़ा हूँ, तो वहां पे मुझे टीचर ने कराया था, और ये लगभग आज से 4 साल पहले की बात है। Hmm. तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे अंदर वैराग्यपन बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि मैं गुरुकुल की चीजों से कनेक्ट कर पा रहा था और सारी चीजें। तो फिर मैंने गुरुजी से एडवाइस ली कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, जब भी मैं चक्रा की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि अभी मैं उस एनर्जी के लिए तैयार नहीं हूँ। क्या मैं उस Okay. एनर्जी को मतलब क्या मैनेज कर पा रहा हूँ, क्या मेरी बॉडी अभी उस इतनी पावर को मतलब ऑब्जर्व हाँ. करने के लिए रेडी है कि नहीं है, वो मुझे नहीं पता था, क्योंकि उस समय एट दैट टाइम आई थिंक आई एम जस्ट
18 ईयर ओल्ड। तो हम्म, और बहुत सारी 18 ईयर में आपको पता ही है माइंड कहाँ कहाँ नहीं आपका उधर चलता है सारी चीजें। हम्म, तो मेरे अंदर वैराग्यपन उत्पन्न हो रहा था चक्रा हीलिंग के थ्रू। तो मुझे पहले तो बहुत मजा आया, 1 डेढ़ महीने की इतना आनंद की प्राप्ति हो रही थी। बाद में मुझे थोड़ा थोड़ा सा फियर हुआ कि यार मैं कहीं वैराग्य में तो नहीं चला जाऊंगा, कहीं मैं संन्यास तो नहीं ले लूंगा, कहीं मैंने लाल कपड़े तो नहीं धारण कर लिए। तो मेरे अंदर ये सारी चीजें भी उत्पन्न होनी शुरू हो रही थी। तो इसके बारे में भी प्लीज ऐड करिएगा कुछ चीजें। बिल्कुल। I'm a married woman, जी। but the thought of a sannyasini, I have it even till now करेक्ट। because it's not that you don't fear the thought. It is natural to come because it is connecting you with your inner self and it is making you and your existence feel so beautiful that और कोई चीज में आनंद आना कम हो जाता है और हम्म। खुद में उस ध्यान में बहुत मन लगने लग जाता है। तो नेचुरली हमारा फिर उसी तरफ ध्यान जाता है बीच बीच में। बट इसका मतलब जी। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दोगे तो ही यू नो वो चीज प्राप्त कर सकते हो या फिर दैट महासमाधि और थिंग्स लाइक दैट। it is very much possible while you do your work, your while you are under your responsibilities, कर्म योग, it is a योग as well as you said। so आप घबराना नहीं, अगर वो अभी भी मन में आता है it is natural to come and do not fear it, okay। ओके। just accept that मुझे ये भाव आ रहा है, जैसा भी भाव है मैं उसको अपनाता हूँ एंड उस भाव से मैं शक्ति लेता हूँ टू डू माई अदर थिंग्स इन लाइफ। जी। दैट way when we take this route, this perspective, it becomes easier for us to navigate through these thoughts। so ओके। don't fear anything, do not think कि मैं ready नहीं हूँ। if you feel that, slow down but do not give up on chakra meditation, okay। so this is one thing। Now talking about aura, aura is a very it's a kind of topic जहाँ पे लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा questions होते हैं, चक्रास से भी ज्यादा। हम्म। मेरे मन में भी थे, but आज I am in a place where मेरी curiosities को जवाब मिला है and I would like to share the same here। ऑरा को संस्कृत में क्या आभा। बोलते हैं हमें? आभा। आभा। आभा आभा, मंडल। राइट। थैंक यू सो मच। सो आभा हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं, सॉरी। आभा एंड मंडल हाँ, संस्कृत में भी। आभा मंडल एंड इंग्लिश में ऑरा। करेक्ट। इट्स द वाइब्रेशंस, वेरी फास्ट वाइब्रेशंस जो कि दिखती नहीं है हमें। हमारी फिजिकल बॉडी में भी वाइब्रेशंस है। वी आर मेड अप ऑफ एनर्जी एंड frequencies and vibrations। everything which is seen is vibration, everything which is not seen and can be felt is also vibration। बस frequency सबकी अलग अलग है, wavelength सबकी अलग अलग है, अलग अलग है। it's like just because आपको कोई चीज दिखती नहीं है doesn't mean that वो exist नहीं करती है। it is told by the intellectual spiritual gurus that दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं जो हमें दिखती नहीं है, हमें सिर्फ 1-2% चीजें ही दिखती हैं। उस 1-2% में सब कुछ आ जाता है जो आप देख सकते हो अपनी नेकेड आइज से, राइट। दैट इज समथिंग आई वांटेड टू स्टेट एज वेल। सो ऑरा इज अ वेरी सटलर बॉडी जहाँ पे फ्रीक्वेंसीज बहुत हाई रहती हैं, उस वजह से हमें दिखती नहीं है। पॉइंट ए। पॉइंट बी, देर आर मल्टीपल लेयर्स हमारे अराउंड है, ठीक है। हर लेयर का एक मतलब है। ये अपना फिजिकल प्रेजेंस है जो आप देख पा रहे हो। सो दिस इज जी। फिजिकल। जस्ट इसके पास में है इमोशनल बॉडी, देन देर इज मेंटल बॉडी। इमोशनल बॉडी इमोशंस से गवर्नड है। मेंटल बॉडी हमारी थिंकिंग, हमारे थॉट
से गवर्नड है. And then comes our astral body, which is governed by the light, and it is a space जहाँ पे कॉन्शियसनेस का एसेंस पता चलता है. हमें सपने वहां से ही आते हैं. एंड जी. देन कम्स आवर कॉजल बॉडी, विच इज ओके. ये मुझे बताना था कि एस्ट्रल बॉडी को संस्कृत में बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, एंड स्थूल कॉजल बॉडी को शरीर, सूक्ष्म शरीर. सूक्ष्म स्थूल शरीर. शरीर एंड सूक्ष्म शरीर. राइट. जी. एंड कॉजल बॉडी को कहते हैं कारण शरीर. ओके. अब मतलब मैं बता देती हूँ. कारण शरीर एक ऐसा शरीर है जो एक कर्म लेके आता है. एक प्रारब्ध. शरीर में, हाँ, इट्स अ सोल which enters into a human body. कैसे? माँ के गर्भ में. It comes with its कर्म जो उसको इस जन्म में करने हैं. राइट. उसका संस्कार है वो. लाइक he has or she has, और सोल का कोई जेंडर नहीं है. So that causal body has certain things to do, and उसी हिसाब से वो उसी सर्कमस्टांस में पैदा होता है एंड वैसी चीजें एक्सपीरियंस करता है. भगवान हमें अपॉर्चुनिटीज देते हैं बहुत सारी, अच्छी बुरी दोनों, जिससे हम सीख पाए कुछ. एंड जैसे ही वो कर्म हमारा कंप्लीट होगा, हम इस शरीर को छोड़ के चले जाएंगे. फिर एस्ट्रल बॉडी, जिसको मैंने बोला सूक्ष्म शरीर, वो एक ऐसा शरीर है जो हमें सपने दिखाता है जब हम सोते हैं तब. एंड कभी कभी देखा है हमें, जब नींद में होते हैं पर पूरी नींद नहीं आई है, बहुत जबरदस्त जाने ही वाले हैं नींद में, तो एकदम से झटका लगता है, ये एकदम से ट्रेन में ऐसे हो होता जाते है हैं. मेरे साथ. हाँ, तो दैट्स योर एस्ट्रल बॉडी मेकिंग यू फील दोज जिटर्स. एंड कुछ साइंस एक्सप्लेनेशंस भी है कि आपका ब्लड प्रेशर ये वो. आई डोंट वांट टू डाइव इनटू दैट, बट दैट्स द साइंटिफिक रीजन. But I'm more thorough with this one, so I'll continue speaking about this. And then comes your this one, mental, emotional and physical body. इनका सही होना बहुत जरूरी है. एंड चक्रास हमारे एस्ट्रल रेल्म में आते हैं. चक्रा वाली जो एनर्जी होती है, राइट, बिकॉज बहुत सटल है ना, हमें तो दिखती नहीं है. डॉक्टर अगर डाइसेक्ट करेगा हमारी बॉडी को, उसको थोड़ी दिखेंगे चक्रास, है ना. उसको तो नर्वस सिस्टम दिखेगा, स्पाइनल कॉर्ड दिखेगी, ब्रेन दिखेगा, वो सब. बट जैसे ही ब्रेन एक फिजिकल पार्ट है, बट माइंड इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, विच यू नो, वैसे ही देयर आर चक्रास जो कि एस्ट्रल वाले बॉडी के अंदर प्रेजेंट है. सटल, can't be seen, only can be felt with vibrations. So ऑरा का सही होना बहुत जरूरी है. एक थॉट, one negative thought can take down your 6 months to 1 year, and बाद में पता चलता है कि chronic disease लग चुकी है. बट ऑरा में पहले ही ये सब डिफेक्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं. एंड a lot of people, ऐसा होता है कि वो बहुत कुछ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट स्टिल दे एंड अप नॉट डूइंग देयर बेस्ट. उनको लगता है ऐसे कि हम अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, कुछ ना कुछ रुकावट, कुछ ना कुछ, वेदर देयर माइंड इज स्टॉपिंग देम, या फिर कुछ फिजिकल चैलेंजेस आ गए हैं, या फिर कुछ आसपास ऐसा हो गया है कि उनका काम रुक रहा है. ऐसी चीजें जब होती हैं, या फिर दे आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली, यू नो, दैट मीन्स दैट देयर aura needs to be seen once, right? And I have clients who come to me with normal things, and जब हम उनको inspect करते हैं, we find out the root cause, and I use these energy work to do that. So talking about the process now, सबसे पहले aura size का पता लगाते हैं कि size कितना है. Aura size has nothing related to your physical body size, right? जैसे for example, आपको L size आता है टी शर्ट में,
जरूरी नहीं है कि आपका ऑरिक बॉडी भी उसी शेप के आसपास। इट कैन बी एज लेस एज 1 फीट, इट कैन बी एज मच एज 20 फीट। इट डिपेंड्स ऑन कि आपका क्या, वो अलग है, फिजिकल बॉडी साइज अलग है। देन वी चेक द ऑरा लेवल। अब लेवल 4 होते हैं, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। हर लेवल का अलग मतलब है। You want me to explain a little about the levels? जरूर। Okay. So level 0 वो लोग होते हैं जो हर वक्त कंप्लेन करते रहते हैं, हर वक्त। ओके। उनको they play the victim card। हम्म। हम्म। ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ये क्यों, वो क्यों। अगर कोई सॉल्यूशन दे भी दे, they'll be still like नहीं पर ऐसे वैसे, but if इस लैंग्वेज में बात करते हैं, they are always complaining and nagging। हमेशा seeing the negative negative negative। इवन कुछ अच्छा भी हो गया ना उनकी लाइफ में, अरे फिर ऐसे हो गया तो दे आर ऑलवेज थिंकिंग in a negative play। Then comes level 1 people। they are mostly negative, but बीच बीच में उनको पॉजिटिव भी फील होता है। जी। एंड वो लेवल 1 वाले लोग ये हैं कि बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारी क्यूरियस हैं, दे वांट टू नो सो मेनी थिंग्स, बट अपने आप को लिमिट कर देते हैं व्हेन इट कम्स टू एक्शन। हम्म। लेवल 2 वाले लोग वो होते हैं जिनको अच्छी चीजें भी, अच्छी चीजें जितनी दिखती है, बुरी चीजें भी उतनी दिखती है। इट्स लाइक अगर इतना अच्छा है तो इतना बुरा भी, मतलब मिक्स है उनका। लेवल 3 पीपल आर पीपल जो कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन को भी इतनी सुंदर तरीके से एक शांत मन से नेविगेट कर जाता है। फर्क उसको भी पड़ता है, ऐसा नहीं है, बट द चॉइस दैट ही मेक्स टू navigate through that difficult situation makes him wonderful। वो लोग लेवल 3 में आते हैं, राइट। ओके। They are always action driven, they are always thinking positive, always taking care of their emotional mind, mental mind and physical mind, everything। So this is how और we detect sorry how we detect aura level is something which I don't want to get into, it's the technicality and everything। but if someone is interested to know, and if someone wants to get their aura read or chakras read and everything, please feel free to come to me and I will definitely help you heal। मैं भी And जरूर आऊंगा आपके पास। sure, sure. Please get this experience at करेक्ट। least once, you should. And I would also want to practice more yoga. So, that being said, we will do that. करेक्ट। Now, after knowing the level of the aura, we see the defects। कि डिफेक्ट किस इंटेंसिटी में है, छोटा है या बड़ा है, या फिर कौन से बॉडी पार्ट्स में है, यू नो। जी। और वी फाइंड आउट कि उन डिफेक्ट्स की मदद की वजह से, यूजिंग द डिवाइन लाइट एंड माई इंट्यूशन, द पावर ऑफ एनर्जी, आई फाइंड how that person is being affected, why that person is being affected, what is the root cause, and what can be done। And then I read their chakras, and in the end, I give them the remedies and the treatments and everything based on what they are most inclined towards, क्योंकि solutions तो अनेक है। So I present them with everything, and बहुत ही customized way में जो वो कर सकते हैं, जो उनके लिए possible है, according to that, I give them the remedies। And when they do that for certain days, I again follow up with them, and then they see or they explain or they tell, they share what they are feeling। And most of my cases not even one case has told that, oh, it didn't work। They were like, wow, this thing is working, I don't know how, but thank you so much। So uh, these things are real, and as amazing as it can sound, equally इतने ही amazingly results भी देते हैं। तो this is something that was there। करेक्ट। एंड मेरे माइंड में अभी एक आइडिया भी आ रहा था कि हम लोग इससे वर्कशॉप भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से हम इसे हाँ, ऑर्गेनाइज करें एंड कुछ कुछ चीजों पे हम इसे बना के प्रॉपर एज ए वर्कशॉप के रूप में कर सकते हैं। तो जितने भी लोग अभी हमें लाइव देख रहे हैं,
तो अगर आपको इससे रिलेटेड जानना है ओरा के बारे में, अपने चक्रास के बारे में, तो जरूर से जरूर इन फ्यूचर में जब भी हम लोग वर्कशॉप डिजाइन करेंगे, पहले तो हमें भी खुद नहीं पता कि हम हम कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। हम जी। करेंगे. Let's do one thing after the live, and after 2 3 days let's sit, meet, design a beautiful program, a हम्म, workshop for everyone who needs the real healing from the yoga point of view, from the spiritual point of view, from the science point of view. Let's make a material, a practice, a practical one, which जिस जो हम अभी बात कर रहे हैं ना, let's make sure that people experience that. Yeah. जी। I करेक्ट। would really want people to experience yoga and energies and everything. So yeah, और I'm up इसमें for कोई the. ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है ना कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ तो नहीं है No, 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 इसमें। nothing, nothing. एवरीवन, हाँ, भले किसी को कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट जैसे सिक्सोफ्रेनिया में है, वो उस स्टेज में नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम को समझ सकें। एंड बहुत सारे ऐसे, तो ऐसे कुछ है क्या जो लोग नहीं कर सकते हैं, कि सभी लोग जुड़ सकते हैं इससे? सब लोग जुड़ सकते हैं. ओके। उसमें कोई वो नहीं है कि जैसे आप कह रहे थे कि वो ब्राह्मी लोग एबी ब्राह्मण। वालों नहीं कर सकते या फिर कम करेंगे. बट इसमें एवरीवन कैन. तो ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है. जी। ओके। Yeah. I also have a last question to you, ओके। because this is also a very important question. मैं मेरे आसपास के लोगों को देखती हूँ, एंड मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स भी हैं who come with a one problem, that is कि हम सो नहीं पाते हैं. जी। उनके रीजन अनेक है. किसी का वर्क प्रेशर है. वर्क प्रेशर से याद आया, आई वुड ऑल्सो लाइक यू टू टॉक अबाउट सम पोजेस विच कैन हेल्प देम इन देयर, यू नो, ओके। क्योंकि वो टेबल चेयर पे बहुत लंबे समय तक बैठते हैं, काम करते हैं, तो उनके बैक में बहुत प्रॉब्लम आती है. तो उसके बारे में अगर आप फटाफट एक दो पोजेस बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा. एंड नींद नहीं आती है लोगों को, इट इज अ रियल प्रॉब्लम, एंड आई वॉन्ट यू टू enlighten them with your wisdom and what you can do to help them. ओके। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, पहले तो मैं ऑफिस वाली चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा। जैसे बहुत सारे लोग ऑफिस वर्क करते हैं, प्रोफेशनल कपड़ों में रहते हैं, वो मैट पे आके, जैसे मैंने बहुत सारे आसनास बताए, वो नहीं कर सकते हैं। तो एट दैट टाइम वो वहां पे भ्रामरी चैंटिंग, जैसे चैंटिंग करें ना, उस समय भ्रामरी में प्रयास ये करें आवाज को कम, वाइब्रेशंस ज्यादा। बहुत लोग क्या करते हैं ना, आवाज ज्यादा करते हैं। तो आवाज को कम। इससे क्या होगा, अगर आपके बगल में लोग काम भी कर रहे हैं तो वो डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि अगर हम, जैसे कोई, मुझे ये पर्सनली लगता है कि अगर मुझे किसी चीज से अगर डिस्टर्ब हो रहा है, तो मुझे भी ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए जिससे सामने वाले को डिस्टर्ब हो रहा है। और ये धर्म भी कहता है, अगर आपको लगता है कि ये चीजें गलत हैं, तो आप भी वो चीजें किसी के साथ नहीं कर सकते हो। तो मेनली क्या है कि जब ऑफिस में कर रहे हैं तो नाद की चैंटिंग करें, ओम की चैंटिंग करें, बहुत ही धीमे। उसमें वाइब्रेशन ज्यादा रहेगी, साउंड कम। वाइब्रेशन ज्यादा, साउंड कम। पहले के समय के ऋषि मुनि भी प्रैक्टिस जब करते थे, तो परफेक्ट। तो पहले के समय के जब ऋषि मुनि बहुत प्रैक्टिस करते थे, वो एक स्थिर आसन में रहते थे। अंदर से वो ओम चैंटिंग कर रहे हैं, अंदर से वो वेद पाठ कर रहे हैं, अंदर से वो ईश्वर से कनेक्ट हैं, अंदर से वो बात भी कर रहे हैं, लेकिन बाहर से फिजिकल बॉडी से आप उनको नहीं समझ पाओगे कि वो ईड़ा नाड़ी से सांस ले रहे हैं, पिंगला नाड़ी से सांस ले रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या वो चैंटिंग भी कर रहे हैं। तो मेनली क्या है कि नाद की चैंटिंग ऑफिस के समय पे जरूर करें। और ऑफिस के समय पे ये एक मुद्रा है, जैसे प्राण मुद्रा भी कहते हैं, शक्ति मुद्रा भी होती है ये वन ऑफ द बेस्ट मुद्रा है। ये हमारी वरुण जो फिंगर होती है, मतलब ये हमारी जो जल तत्व को बैलेंस करती है, ये पृथ्वी तत्व को बैलेंस करती है, और ये अग्नि तत्व को बैलेंस करती है। तो ये प्राण मुद्रा कहलाती है, और तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑफिस में कुछ समय के लिए इसमें भी जरूर रह सकते हैं। उसके साथ साथ अगर नींद की बात करूं, करेक्ट,
तो उसके साथ साथ नींद की बात करूं तो नींद क्यों नहीं आती, इसका सबसे प्रमुख कारण है मेलाटोनिन हार्मोन्स की कमी होना। हम्म, मेलाटोनिन हार्मोन्स को बैलेंस कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से हाइपोथैलेमस ग्लैंड करता है। तो जब आप भ्रामरी चैंटिंग करते हो ना, तो ये भी कहीं ना कहीं मेलाटोनिन हार्मोन्स को एक्टिव करता है। हम्म, मेलाटोनिन अगर हम्म, आपके शरीर में अच्छी मात्रा में बन रहा है तो आपको ऑटोमेटिक नींद आनी शुरू हो जाएगी। true. ऑटोमेटिक, आपको जरूरत ही नहीं है। जैसे सुबह के समय हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल की मात्रा ज्यादा रहती है, रात के समय पे मेलाटोनिन, और ये इस तरीके से नेचर्स ने हमें संकेत दिया है कि रात बनी है सोने के लिए। जैसे एक गुरुदत्त विद्यार्थी करके बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति थे, ये दयानंद सरस्वती जी के स्टूडेंट थे। और ये मैं 19वीं सदी की बात बता रहा हूँ। तो ये उस समय क्या हुआ था, दयानंद सरस्वती जी को 17 बार जहर दिया गया था और 17वीं बार में उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया था। तो उस समय उनका मेंटल स्टेज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था गुरुदत्त विद्यार्थी का, क्योंकि उन्होंने दयानंद सरस्वती जी अपने गुरु को अपने सामने से जाते हुए महसूस किया था। तो उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी, इतने ज्यादा विद्वान थे वो व्यक्ति, कि वो मतलब 17 दिन में उन्होंने 4,000 जो सूत्र हैं अष्टाध्यायी के वो याद कर लिया था। और 5 नियम आर्य समाज के आगे, 5 नियम आर्य समाज के पीछे लगा के पूरे मोहल्ले में चक्कर लगाते थे कि ये देखो आर्य समाज से जुड़ो, ये सारी चीजें। उनका 29-30 की एज में उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि उन्होंने प्रकृति के चीजों को डिसिप्लिन में, मतलब प्रकृति ने संकेत दिया कि रात सोना चाहिए। वो 48-48 घंटे तक प्रैक्टिस करते थे, पढ़ाई करते रहते थे। तो क्या किया, उनकी बॉडी ने उनका साथ नहीं दिया। तो कभी भी जो व्यक्ति भी नेचर के खिलाफ जाता है ना, वो व्यक्ति हम्म, कभी भी सक्सेस नहीं। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नाइट वर्क करते हैं। नाइट वर्क करते हैं, आप उनको देखोगे धीरे धीरे उनके शरीर पे ही बहुत सारी कमियां देखने को मिलेगी। उनका हाँ, डाइजेशन पहली चीज तो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वो रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे खाते हैं। जब रात में खाते हैं आपका आंखें रात में ऐसे, डाइजेशन, हाँ, आंखें ऐसे बहुत ड्रूलिंग रहेगी। करेक्ट, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स होगी। आपकी एज बहुत कम हो जाएगी अगर आप 80 90 100 तक जी सकते हो। तो अगर आप रात में सही से नहीं सोओगे तो उससे क्या होगी, आपकी एज भी कम होगी, साथ साथ आपका हेल्थ भी जाएगा। आप जब तक रहोगे तब तक आपको हेल्थ में कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस रहेगी। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए सबसे अच्छी टेक्निक है एक तो ब्राह्मी चैंटिंग, ये हम सब आसन में कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम योग निद्रा कर सकते हैं। योग निद्रा वन ऑफ द बेस्ट पावरफुल टेक्निक, जो हमें जैसे नाम से ही पता चल रहा है, योग निद्रा। तो योग में हम क्या करते हैं, निद्रा करते हैं, और एक एक पार्ट बॉडी के, सूक्ष्म शरीर से लेके स्थूल शरीर तक, सब बॉडी पार्ट के पास में एनर्जीज को क्या करते हैं, हम लोग भेजते हैं। और जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, योगा प्रैक्टिस करते हैं तो आईब्रो के पास, ईयर के पास, इन सब का क्या होता है, अच्छे से स्टिमुलेशन नहीं होता है। ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ पे नहीं होता है। चलो हाथ को ऊपर कर लिया, इधर ट्विस्ट कर लिया, abdominal एरिया स्टिमुलेट हो गया, लेग्स थाइज स्टिमुलेट हो गया। लेकिन इसका क्या करोगे, इसका क्या करोगे, नॉस्ट्रल के पास में क्या करोगे, इन सबको कैसे आप मैनेज करोगे? तो उसके लिए क्या होता है, योग निद्रा। योग निद्रा वन ऑफ द पावरफुल, बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। और ये आधे घंटे से लेके 40 मिनट तक होता है, जो कि नींद को अच्छा करता है, मेलाटोनिन हार्मोन्स को एक्टिव करता है, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ, जिनको सडनली रिजल्ट चाहिए, जिनको चाहिए कि नहीं यार अब ये सारी चीजें तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है यार, 1 महीने तक करूंगा तब जाके नींद बैलेंस आएगा, कौन करे यार, मुझसे तो नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे माइंड स्टेज वाले भी हैं यहाँ पे। तो मैं उनको ये चीज बताना चाहता हूँ कि एक्यूप्रेशर में ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको प्रेस करोगे और तुरंत के तुरंत आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। मैं कुछ कुछ पॉइंट्स आपको दिखाता हूँ अभी लाइव बना के। ये अगर आप मेरे पॉइंट्स देख पा रहे हो, ये होता है पेरिकॉर्डियम का 6 पॉइंट। इसे अगर आप मीठी के थ्रू, सर्जिकल टेप के थ्रू अप्लाई करते हो तो ये हमारे हार्ट रेट को मेंटेन रखता है, और हार्ट्स को मतलब क्या करता है, दिल की धड़कन को मैनेज करता है। फिर ये स्प्लिन का पॉइंट है, SP6 जिसे कहते हैं, जस्ट जहां पे ये पॉइंट बना है, ध्यान से। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जैसे 3 दाने या फिर 4 दाने 5 दाने, वैसे तो हम लोग इसमें मैग्नेट को यूज करते हैं जिसको बॉयल मैग्नेट कहते हैं, जो कि एक तरफ येलो कलर होता है, एक तरफ व्हाइट कलर होता है। येलो कलर अगर टच होता है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एनर्जीज को बढ़ाते हैं।
और जहां पे व्हाइट कलर टच होता है स्किन से वहां पे एनर्जीज को कम करते हैं। मेनली क्या है, एनर्जी को बैलेंस करना। जैसे अगर मुझे चोट लग गई तो चोट लगते समय वहां पे एनर्जीज बढ़ गई है, अब मुझे वहां पे एनर्जी कम करना है, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, सफेद कलर को ऊपर रखूंगा, सॉरी येलो कलर को ऊपर रखूंगा, सफेद कलर को टच करके रखूंगा। तो मेनली उसमें ध्यान देना रहता है। लेकिन आपको इस चीज का भी स्ट्रेस नहीं लेना है कि बॉयल मैग्नेट लगाऊं या वो करूं। आप यहाँ पे मेथी अप्लाई करो, क्योंकि मेथी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और मेथी अगर एक बार आप लगाओगे, अगले दिन उस मेथी को फेंक दो, नेक्स्ट डे लगाओ, आपको 2 दिन के अंदर रिजल्ट मिलेगा। तो पहला हो गया SP6, ये हो गया SP6, ये हो गया पेरिकॉर्डियम का 6, ये है कंसेप्शल विसल का 4 पॉइंट, ये है कंसेप्शल विसल का 6 पॉइंट। तो यहाँ पे आप 3-3 दाने सर्जिकल टेप के थ्रू अगर अप्लाई करते हो ना, दोनों हाथों में आपको करना है सेम जगह पे, तो आपको 2 दिन के अंदर बहुत अच्छी आपकी स्लीप साइकिल हो जाएगी सिर्फ इतने करने से। वापस आप ऐसे कर सकते हो, मैं हाँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहती हूँ। ओके। गाइस सब स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसको जब हम लोग वीडियो बनाएंगे तो उसमें मैं एक फोटो भी लगा दूंगा, जिससे आप कर सकते हो। क्योंकि ट्रेडिशनल क्लासिकल मेडिसिन में 361 पॉइंट होते हैं, तो उसमें 14 प्रकार के मेरिडियंस होते हैं, तो किस प्रकार से क्या वर्क करता है तो काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसे मैं कभी कभी हॉस्टल में अप्लाई करता था और मैंने इसके रिजल्ट देखे हैं, ऐसा नहीं है मैं हवा में बात कर रहा हूँ। मैं इसे लगा के मैंने सोया हूँ, मुझे बहुत अच्छी स्लीप आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप 10 से 2 बजे की नींद लो। 10 से 2 बजे की नींद इतनी पावरफुल नींद है कि वहां का 1 घंटा और 2 बजे के बाद का 3 घंटा इक्वल माना जाता है। जो लोग सोते ही 2 बजे हैं वो 10 बजे उठेंगे ना, तब भी कहेंगे नहीं मम्मी 5 मिनट हम्म। और। अरे कोई नहीं, अलार्म अगर एक बार बजा ना तो एक बार दूसरे बार बंद कर देंगे। लेकिन अगर जो व्यक्ति 10 बजे से पहले सो जा रहा है, 10 बजे के आसपास सो जा रहा है, वो व्यक्ति अगर 5 बजे भी उठेगा ना, उसकी एनर्जी एक अलग लेवल की रहेगी और पूरे दिन वो काफी एनर्जी फील करेगा। तो 10 से 2 बजे की नींद में क्या होता है ना, आपको कभी भी आप अगर अपने माइंड को रिवर्स करके देखो, पूरे माइंड को बैक ले जाओ, अगर आपको कभी भी डरावने सपने आए हैं तो उस समय 2 बजे के बाद का समय है। 10 से 2 99.99% डरावने स्वप्न नहीं आते। ये बहुत अच्छा समय है। इसीलिए जैसे सुबह बनी है ना, सुबह के समय एनर्जी क्या होती है, सूर्य उदय होता है, उस समय डाइजेशन लगभग रात के हिसाब से 4 गुना ज्यादा फास्ट रहता है। तो राइट। ये जो प्रकृति है ना, प्रकृति हमें सपोर्ट करती है। समय, उस समय क्या होता है, तामसिक प्रवृत्तियां बहुत ज्यादा जागृत रहती हैं, सुबह सात्विक रहती है। तो रात के समय में अगर 10 से 2 बजे अगर आपने डाल लिया, हैबिट डाल दिया कि 10 से 2 की अगर आप नींद लेना शुरू कर दिए, तो ऑटोमेटिक आपकी नींद की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। अगर आप 4 घंटे 5 घंटे भी सो रहे हो ना, आप काफी एनर्जी में रहोगे। और कुछ लोग क्या करते हैं, पूरे पूरे दिन में 10 10 15 15 घंटे सोते हैं, तब भी अगर उनसे बात करो, मतलब हाँ। अलग ही, मतलब उनकी एनर्जी देखने से ही पता चलती है। तो हाँ। ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी। जी। जिनको बॉडी रिदम के बारे में जानना है, नेचर के साथ अलाइनमेंट बॉडी को कैसे लाना है, उस अगर उनको इस चीज के बारे में और जानना है, तो सर्कैडियन रिदम के बारे में जरूर गूगल करना। उसके आपको डायग्राम्स या इंफोग्राफ्स या फिर ग्राफिक्स बहुत मिल जाएंगे इमेजेस में। जस्ट रीड इट वंस एंड यू विल रियलाइज कि आपकी बॉडी कितनी अलाइनमेंट में रहना चाहती है नेचर के साथ में, एंड वाइस वर्सा। जी। अलाउ दैट टू हैपन। अपने आप को अलाउ करो टू एक्सपीरियंस दिस। आई एम टेलिंग यू, यू विल, योर बॉडी विल थैंक यू 100 टाइम्स। So please Google circadian rhythm. ओके। तो यहीं पे हम लोग अपना लाइव सेशन अब समाप्त करते हैं। एंड फ्यूचर में हम जब भी करेंगे, वर्कशॉप Workshop. डिजाइन करेंगे, तो उससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन जरूर देंगे। एंड लास्ट थिंग, ज्योति जी, कुछ ऐसी चीजें आप ऐड करना चाहते हो जो लगे कि मिस हो गया, या कुछ भी, एनीथिंग, या किसी को कुछ बताना चाहो अंत में, I फाइनल? would first like to see अगर किसी ने कोई क्वेश्चंस पूछे हैं तो। मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ, मुझे क्वेश्चंस दिख नहीं रहे एक्चुअली। ओके। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा जी। अम, आपको आई डोंट नो, मुझे बन कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं। ओके। किसी ने पूछा है बंद के बारे में। बंद के बारे में मैं आपको छोटे लेवल पे जरूर बताऊंगा, मतलब छोटे से रूप में। ज्यादा हमारे पास समय भी नहीं है। 3 प्रकार के बंधाज होते हैं। ज्योति जी मुझे बताइएगा अगर मैं कुछ चीजें, अगर आपको भी ऐड करनी हो तो इसमें।
बंध तीन प्रकार के होते हैं, मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध। मूल बंध कैसे अप्लाई होता है? जब हम एनस रीजन जेनाइटल एरिया प्लस जो लोअर बैक की मसल्स होती हैं उन तीनों को जब हम क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। और उसमें क्या करना है, सिर्फ कांटेक्ट ही नहीं करना है, उसकी एनर्जीज को मेंटेन करते हुए, जैसे कि उसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती है, सहज मुद्रा हो गई, अश्विनी मुद्रा हो गई। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, कांटेक्ट किया, रिलैक्स किया, कांटेक्ट किया, रिलैक्स किया, फिर अचानक से कांटेक्ट कर लिया, होल्ड कर लिया। तो उससे क्या होती है, वो हमारे मूलाधार की चक्र की एनर्जीज काफी बैलेंस होती है। दूसरा होता है उद्यान बंध। उद्यान बंध ऑलवेज बाह्य कुंभक में ही अप्लाई होता है। जैसे हमने इनहेल किया, एक्सेल किया, पूरी डायफ्राम की ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग को, मतलब क्या किया हमने, सांसों को बाहर निकाल दिया। अब हमारा एब्डोमिनल तैयार हो गया कि मैक्सिमम अंदर की तरफ वो जा सकता है, तो इसी को क्या कहते हैं, उद्यान बंध। जालंधर बंध कहते हैं जब हम चिन को लॉक करते हैं। चिन को किस प्रकार से लॉक करना है, सांसों को भरा, गर्दन को हल्का सा पीछे किया एंड हायर्ड बोन के पास में चिन को ऐसा डाउन कर दिया कि गर्दन के ऊपर, गर्दन के नीचे आर्टरीज, वेन्स में 60 to 70% ब्लड का सर्कुलेशन भी रुक जाए। जब आप जालंधर बंध को रिमूव करोगे तो क्या होगा, पंपिंग के साथ वो जाएगा और हमारी सीरिब्रम के पास में, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में, हाइपोथैलेमस ग्लैंड के पास में क्या करेगा, ब्लड के सर्कुलेशन को, एनर्जी के लेवल को क्या करेगा, एनहांस करेगा वहां पे। तो ये तीन प्रकार के ही मुख्यतः बंध होते हैं, जिसे हम लोग बहुत जगह पे भी अप्लाई करते हैं, आसनास के समय पे भी करते हैं, मुद्राओं के समय पे भी करते हैं। एंड ये तीनों बंध जब एक साथ अप्लाई होते हैं तो इसी को महाबंध कहते हैं। और वैसे तो अगर मुद्राओं की बात करूं तो मुद्राएं बहुत प्रकार की होती है, महामुद्रा, महाबंधो, महावेदश, खेचरी, उद्यान, मूल बंधस, ततो जालंधर, अभिधव, करणी, विपरीताक्षम, रजोली, शक्ति चालनम। ये 10 प्रकार की मुद्राएं तो सिर्फ और सिर्फ हठयोग प्रदीपिका में बताई है। ऐसे घिरण्य संहिता में अलग बताई है। सभी प्रकार के लोगों ने अलग अलग थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीजें ऐड की है, तो वहां पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा गुड, आपकी किसी ने तारीफ की है कि आप बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हो एवरीथिंग, हाँ, एंड थैंक यू। वो मेरी सिस्टर है, शी इज अ योगा प्रैक्टिशनर हरसेल्फ। मैं आपका जरूर उनके साथ इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। ओके, बाकी तो कोई प्रश्न नहीं है। थैंक यू सो मच। एंड लास्ट में अगर कुछ आप ऐड करना चाहो अपने तरफ से, कि अंतिम संदेश। मैं बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, बस सबके लिए, जो भी ये देख रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा मेरी तरफ से एक प्रेयर करना चाहूंगी। एंड आई वुड वांट टू सेंड द एनर्जी फॉर योर ग्रोथ, joy, and happiness, because each one of you who's watching us, you deserve the light, the growth, the happiness, the wealth, and a very good health. And I just want to send that good to you. Thank you so much for being with us, and may we connect again, and may the divine light shower you with a lot of light. And thank you again, again, and again. And thank you again to Aman as well for giving me this opportunity. I enjoyed this live. Very powerful, very beautiful energies exchanged. You're so wise, you're so knowledgeable, and थैंक I यू। learned so many things from you today that I'm sure it is going to help me in my healing. And when I talk to people, I'm going to definitely use the points that you shared with my clients so that जी they can have a peaceful sleep and much more other things. And the way you speak Sanskrit and the words and the verses and everything is very, very like poetic. It is like you know what you're speaking. And I'm happy that I'm getting connected to a person who is knowledgeable and who knows what he's speaking. So it is very थैंक rare to find people like this who are very genuine, and you're doing a great work. And please continue to do the same. And I send you much light and power to you as well. थैंक यू सो
मच। मैं आपकी तरह इतना अच्छा तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, सेम टू यू। जितनी भी एनर्जीज हैं, एंड मैं आपको भी जरूर, आपके लिए भी प्रार्थना करूंगा ईश्वर से, कि जो भी आप करते हो एवरीथिंग बहुत ही अच्छे से रहे, एंड आप जहां पे भी जाओ लोगों को कनेक्ट कर सको, लोगों की समस्याओं को सॉल्व कर सको। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी मैंने देखा है कि अगर मैं किसी की भी प्रॉब्लम्स जो लेके भी आते हैं कि सर मुझे ये हुआ, जब उनकी सही में प्रॉब्लम सॉल्व होती है ना, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो वो एनर्जीज तो आपने सैकड़ों बार फील की होगी। तो वो एनर्जीज आप में बढ़ती जाए, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। Thank you so much. Thank you so much. With थैंक यू सो this, मच। we can एंड end. लास्ट में जो भी लोग लाइव हैं, प्रियंका जी थैंक यू सो मच, स्वाति जी, दर्शन भाई, गोनिका जी, जाट भाई, कृष्णा जी, रुचि जी, इन सभी का पर्सनली थैंक यू जो लास्ट तक हमें देख पा रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर एवरीवन। Thank you for everything. Thank you थैंक यू। so much. नमस्ते। बाय एवरीवन। गुड नाइट। Good night.